میرے گھر میں کوئی روشنی کرنے کے لیے کوئی چیز کا انتظام نہ تھا. اللہ پسند عام نہ فرماتی ہے. اس کے بعد میرے آقا کریم کی صورت کو تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کے آنے سے پہلے عرب کی پوری سرزمین جو ہے سہنے لگ گئی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کی شان دیکھو. سیدہ آمنہ فرماتی ہے اللہ اکبر. اب یہاں ایک بات آپ سنیں کہ میرے آقا کریم صبح صادق کو دنیا کا جلوہ گر ہوئے ہیں. صبح صادق کو آپ تشریف لائے ہیں. ذہن میں ایک سوال ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی ہے کہ آپ میرے آقا چاہتے تو دن کے اجالے میں بھی آ سکتے تھے, آپ چاہتے تو رات کی تاریکی میں بھی آ سکتے تھے, لیکن آپ صبح صادق کو کیوں آ رہے ہیں؟ صبح صادق کو کیوں آ رہے ہیں؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ اگر آپ کا ایک اگر دن کے اجالے میں آتے تو دن کے اجالے رات کی تاریکی سے کہتا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ آقا تو ہم میں آئے ہیں. اللہ اکبر. اگر میرے آقا رات کی تاریکی میں آتے تو رات کی تاریکی دن کے اجالے سے کہتا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ آقا تو ہم میں تشریف لائے ہیں. لیکن میرے آقا کیسے انصاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صبح صادق کو آ رہے ہیں تاکہ دن کا اجالا آتے آتے آقا کے چہرے نبوت کی زیارت کر لے, اور رات کی تاریکی جاتے جاتے میرے آقا کے چہرے مبارک کی زیارت کر لے. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے آقا جب حرم کی سرزمین پر مکے کی سرزمین پر آپ چلا کر ہوئے ہیں اور اس رات کا منظر اس صبح کا منظر دیکھو. اللہ اکبر. پورے عرب کی ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی ہے, ہر گھر سے خوشبوئیں آ رہی تھی. اللہ اکبر. ہر گھر سے فضاؤں میں خوشبو ہے, ہواؤں میں خوشبو ہے, پورا عرب مہکنے لگا ہے. عرب کے سردار صبح سو کر کے اٹھ رہے ہیں تو آپ کو جب عرب کی شہر میں آ کر کے اکٹھا جمع ہوئے تو سب نے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج عرب کا سرزمین دیکھو ماحول بدلتا سا لگ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ آج میرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جب میں نے میرا باپ بیمار تھا مجھے دوائی کر ٹھیک ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کا جائزہ لیا ہے, کوئی طرف سوکھے کو ہرے ہو گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بکری کے خشک ہو گئے ہیں, لیکن دھوپ سے بھر گیا ہے. اللہ اکبر. سارے عرب کے سردار بحث کر رہے ہیں, باتیں کرنا شروع کر دیے ہیں. اسی میں سے عرب کی سرزمین سے ایک عرب کے سردار باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یہاں کی چیز کی بحث ہو رہی ہے, کس بات کی وہ بحث کر رہے ہیں. تو عرب کے سرداروں نے کہا تھا میں نے انتظار نہیں دکھ رہا ہے, دیکھتے نہیں ہو ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی ہے, دیکھتے نہیں ہو بغیر دوائی کے بیمار اچھے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا کہ میں جو دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر میں بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. اس کے بعد سب جتنے سرداران عرب کے لوگ تھے سب نے کہا تھا آخر تم نے ایسا کیا دیکھ کر کے آیا ہے, آخر کون سی چیز دیکھ کر کے آئے ہو. تو اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عبدالمطلب کے گود میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا. اللہ اکبر. میری نگاہ نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھے ہے. اللہ اکبر. میں نے پوری زندگی میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا دور عبدالمطلب اس بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا, اور میری ذہن کا اصلاح نہ کر سکی. اللہ اکبر. عبدالمطلب کیوں بڑھتا جا رہا تھا, خانہ کعبہ جھکتا ہوا چلا جا رہا تھا. بریلی کی تاجدار امام احمد رضا قرآن اٹھے کہ بریلی کی تاجدار امام احمد رضا قرآن اٹھے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا ان کی قبر کا نظام بریلی کی تاجدار قرآن جو کہ سجدے کو محراب کعبہ ہمیں بھی اللہ کو کہنا ہو رہا ہے. آپ آئیے آپ کے لیے اس کے بعد میرے آقا کریم اس کے بعد سارے عرب کے سردار کے اللہ کہنے لگے چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں سردار قریش عبدالمطلب کی کون سا بچہ ہے, کیسا بچہ ہے, کیسا خوبصورت بچہ ہے. اللہ اکبر. اس کی بچے کی وجہ سے ہمارے شہر میں ہمارے عرب کی سرزمین میں آج وہ خوشبو پھیل رہی ہے, اس کی بچے کی وجہ سے پھیل رہی ہے. اللہ اکبر. آپ کے ووٹ میں کون سا بچہ
है, कैसा बच्चा है, हम भी देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, इतना जैसे इतना कहा है, उसके बाद अब्दुल मुतल्लिब है जैसे अपने बाहों को मिलाए हैं। अल्लाह अकबर, उसके बाद सरदारा, उसके बाद तमाम सरदाराने कुरैश के जब मेरे आका करीम के चेहरे पर निगाह पड़ी है, अल्लाह अकबर, बरेली के ताजदार की जुबान से वो पुकार उठे, बरेली की ताजदार की जुबान से खानदान कुरैश, बरेली की जुबान से ये अरब के सरदार पुकार उठे कि वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये पुराने नक्शे जहां नहीं, यही फूल हमारे से दूर है, यही शर्मा है कि सारे अरब के सरदार पुकार उठे, कमाल नक्शे जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शर्मा है ये दुआ है। उसके बाद हमें अब्दुल मुतल्लिब के आए, आओ आपको आगे समझ कराता हूँ। उसके बाद नबी की शान कहाँ हासिल हो गई, उसके बाद अब्दुल मुतल्लिब के आका करीम को लेकर के सीता आमना की गोद में आकर के देते हैं। अल्लाह वो सीता आमना अपने कपड़ा क्यों करके अपने आका करीम के जुल्फों को देखा दे रही है। अल्लाह वो अरब के हर घर में खबर फैल गई है, मेरे आका की विरासत की खबर अरब के हर घर में फैल गई है। सारे लोग आ रहे हैं, सीता आमना को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसलिए आमना आज अगर आज अब्दुल्ला होते तो वो खुश हो जाते, आज अब्दुल्ला होते तो उनकी उनको कनेक्ट की जाती। अल्लाह को सारे लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, लेकिन हज़रत आमना कहती है कि मेरा घर वो है वो ज़ियारतगाह बना हुआ है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मेरे आका को देख करके सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि खानदान कुरैश आज तक किसी खातून ने इनका हसीन और जमीन बच्चा जला ही नहीं है, आज तक किसी अरब की सरजमीन पर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। अल्लाह को सारे अरब की औरतें कह रही है। उसके बाद सीता आमना फरमाती है कि जिस वक्त मेरा बेटा जिस मेरे बेटे की विरासत का वक्त हुआ, उस वक्त एक रोशनी जाएगी, मैं उस रोशनी से ईरान के जरानात में जो उड़न चल रहे थे, मैंने उसके गर्दन के रस्सी जो रस्सी लगे हुए वो रस्सियां भी देखी है। अल्लाह को मेरे नबी की मैं इरशाद फरमाती है, जिस वक्त मेरा बेटा मोहम्मद, जिस वक्त मेरे बेटे की विलादत का वक्त हुआ है, उस वक्त विलादत हुई है, उसके बाद आसमान से आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर कोई निदा देकर के कह रहा था, ये आमना, ये जो तुम्हारे गोद में बच्चा है, इसका नाम जमीन पर मोहम्मद है और आसमान में अहमद है। अल्लाह अकबर मेरे नबी की मैं इरशाद फरमाती है, जिस वक्त मेरा बेटा मोहम्मद की विलादत हुई है, उस वक्त मेरे आका करीम ने अपने पेशानी को जमीन पर रखे हैं। अल्लाह अकबर, और आपने अपने उंगली के इशारे आसमान की तरफ किए हुए हैं। उसके बाद आपने तीन अल्फाज कहे हैं, आपने पहले मर्तबा कहा है अल्लाह अकबर, दूसरी मर्तबा आपने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह वसीला, आपने तीसरी मर्तबा कहा है रब्बि हब्ली उम्मती, रब्बि हब्ली उम्मती। अल्लाह अकबर, मैं मुसलमानों पर मान जाऊं अपने नबी की शान पर। मेरे आका पैदा होते ही अपने से गुनहगारों को, अपने से ईमानदारों को याद करवा रहे हैं, याद कर रहे हैं, रब्बि हब्ली उम्मती, रब्बि हब्ली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। या अल्लाह मेरी उम्मत को तेरे हवाले करना, मेरी उम्मत को तेरे हवाले करना। इसलिए तकरीर शायद कह रहा है कि रब्बि हब्ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया बख्शा अल्लाह। हम हैं हज़रत के सामने जो खैर इस्लाम खैर इस्लाम आओ का आओ नमाज पढ़िए आओ का आओ हम मेरे को इस्लाम का सारे नबी की शान को अल्लाह ये को है इस्लाम को अल्लाह को उनकी बात उसके बाद अल्लाह का फरमाती है कि मेरे बेटे जब विलादत हुई है मेरा पूरा घर बह रहा है, मेरा पूरा घर बह रहा है, तो दीवार से खुशबू आ रही है। अल्लाह मेरे नबी की मैं इरशाद फरमाती है, उस वक्त की दस्तूर था, मगर जब कोई बच्चा पैदा होता है
जब कोई बच्चा पैदा होता था, अल्लाह बाहर से औरतें आती और ले जाकर के अपने बच्चे को, उस बच्चे की परवरिश किया करती थी। अल्लाह करीम की शान कहाँ परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम तमाम लोगों को हुजूर की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और सीधा आना ये भी फरमाती है, उसके बाद जो औरतें वहाँ उस वक्त विलादत के वक्त वही मौजूद थी, वो औरतों का बयान है कि मेरे आका को जब देखा टूटा देखते हैं, मेरे आका की आंखों में सूखा लगा हुआ था। अल्लाह आपको पैदा हो गए, तो आपको पता शुदा पैदा हो गए, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप पता शुदा पैदा हो गए। अल्लाह मेरे नबी की इरशाद फरमाती है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ है उस वक्त आसमान से बादल का टुकड़ा आया है, मेरे बेटे को उठा करके ले गया है और वो आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, ये इमामुल अंबिया है, इसे बच्चे को बकरी का शेर बना दो, अल्लाह को से कायनात को दिखा दो, अल्लाह को ये मेरे नबी की शान है। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी को अपनी तरह कहते हैं, नबी के माँ बाप को जहन्नमिया कहते हैं। अल्लाह को मेरा सोचो तो सही, हमें कोई खानदानी झगड़ा नहीं है, हमारे किसी मजहब के साथ किसी चीज का ताल्लुक किसी को पर्सनल झगड़ा नहीं है, बल्कि वो नबी के माँ बाप को काफिर कहता है। आप बताइए, हदीस आपको सुनाता हूँ, एक मेरे आका के जमाने में एक इमाम ने किबला की तरफ करके मुंह को किबला की तरफ करके थूक दिया, हुजूर की निगाह पर हुजूर ने फरमाया कि कल से ये मुसल्ले पर नहीं चढ़ेगा, कल से नमाज फजर नहीं पढ़ाएगा। वो सब दौड़ करके आता है, आने के बाद कहता है आका गुस्ताखी क्या हो गई है, आखिर वजह क्या है? कहता मेरे आका फरमाते हैं तुमने किबला की तरफ मुंह करके थूक दिया है, इसकी वजह से तुम काबिल इमामत के काबिल नहीं रहा है। अल्लाह को बताइए जो किबला की तरफ थूक दे, अल्लाह के रसूल उसके पीछे नमाज करते हैं, लेकिन नमाज तो नबी के माँ को जहन्नमिया कहे, तो नबी के माँ को नबी के माँ बाप को काफिर कहे, उसके पीछे हमारी नमाज कैसे दुरुस्त हो सकती है? उसके रिश्ता करना हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? याद रखो, जिंदगी में कहीं कुआरा रह जाना पसंद करना, लेकिन किसी लकीले की लड़की से शादी मत किया करना। अल्लाह इमाम अहमद रज़ा का मसलब क्या है? इमाम अहमद रज़ा का मसलब आज के हर बच्चा कहता है कि डाल के कल को अजमते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे इमाम ने हमारे ईमान की मजबूती के साथ हमें कायम रखा है, हुजूर का शुक्र करना है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम तमाम लोगों को दीन इस्लाम मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं से जुमा में आपको बयान सुना ही रहा हूँ हुजूर की बरकत का, उसके बाद इंशाअल्लाह जुमा को बयान किया जाएगा। अब आइए अब्दुल कादिर साहब से पहले हाफिज साहब को बुलाएंगे, उसके बाद आप खामोशी के साथ आप लोग हमारे नायब मेहमान हाफिज अब्दुल कादिर साहब की आपको बयान सुनना है, और उसके बाद दिखाना है। उसके बाद जो लोग यहाँ शामिल हैं, आज यहाँ आए हैं, अगर हुजूर देख रहे हैं, अगर हुजूर हमें देख रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर हुजूर देख रहे हैं, हमें हुजूर देखने से हमारे नाम से नहीं, हमारे बाप के नाम से नहीं पहचानते हैं, हमारे खानदान से नहीं जानते हैं, तो आज यहाँ है कि क्या नमाज पढ़नी है, क्या है दुनिया में कुछ नहीं है, बस नमाज की पाबंदी करो, करते रहो। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे सवाब के बैठे हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है तो परवरदिगार आलम को हैरान किए गए हैं, हुजूर के सबसे मुझे फिरदौस के आला फरमाए, उसकी कब्र में किसी किस्म की अज़ाब इसलिए अता हो गई हो, तो हुजूर के माँ बाप के सबके उसे जन्नत का परवाना बना दे। परवरदिगार आलम से दुआ है जब तक आप बैठे हैं, सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह के साथ इज्जत करते रहे, ताकि हमारे पर सारी आप जिंदा साथ को पहुंचता रहे। और प्यारे के फैसले दौलत सबके पास होती है, लेकिन आप सब अपने माँ बाप के नाम आप अपने माँ बाप के नाम पर याद कराइए, ताकि आज सभी मसायात आपके माँ बाप छोड़ करके गए हैं, ये आपको आप उसके उर्दू है आपका इंतजार करती है। हो सकता है औलाद आज हमारे लिए करवा दे, हो सकता है आज औलाद हमारे लिए बातें खाने का इंतजाम करे, आप जब करते हैं तो उसके अच्छा सवाब पहुंचता है। अल्लाह को फरमाए कि नहीं आपको करो बुलाया है बोलने का करके हमारे करके भूल को उसके माफ कर पाए। जब आने के लिए अस्सलाम वालेकुम।